celebrates. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyadeshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Now 3 times we'll say Hare Krishna Mahamantra, all of you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Hare Krishna, everyone. So, you know what we are going to celebrate today? What festival we are going to celebrate today? Anything? Any idea? Why you are dressed up like this? What we are going to celebrate? What she told? Ayodhya open Mataji. Yes. Lord Sri Ram is coming back to Ayodhya. So we are going to celebrate this festival. You know? So this is an historical moment. What is this? This is an historical moment for all of us. And for this, we have come together to celebrate this festival. Is it? Bhagwan Ramchandra aaye hain Ayodhya mein. For that, we are celebrating this festival. और so मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी. For this, Ashna Mataji will be telling you. So over to you, Ashna Mataji. हरे कृष्णा किड्स. जैसे कि माता जी ने बताया, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का, उल्लास का, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड and celebration and joy for all of us. And whatever I am going to tell you, you have to listen very carefully, because in the end I am going to ask you questions. Okay, so listen carefully. As you know, Ramayana, all of you, I think all of you know the story of Ramayana. Am I right? Even then, I will tell you in brief as I could do. Okay. India is well known for its rich culture and heritage. A King Dashrath, the ruler of Ayodhya, and his 3 wives had 4 children. Dashrath had wives and 4 children. His favorite was his eldest son, Shri Ram. He wanted him to be the king. However, the news didn't go well with his second wife, Kari. She wanted Bharat to be the king. She asked the king to send Rama to exile and make Bharat the king. He had to do so because this queen Kekai had 2 promises. Once in the battlefield, she told her, I will give you
some benediction. But she said, whenever I will need, I will ask you. And this was the day she asked him 2 benedictions. One, Bharat. In the forest, Sita was kidnapped by Ravana. And when Dashrath told Rama to go to the exile, Rama happily, along with Lakshman and Sita, left for exile. In the forest, what happened? Sita was kidnapped by Ravan, the king of Rakshasas, and Lakshman met Sugriv and Hanuman, who agreed to help them by providing them with monkey army, Vanar Sena. With the help of monkey army, Rama and Lakshman successfully won over Ravana's army and killed him, thus rescuing Sita and bringing her back to Ayodhya. And when Sita, Ram and Lakshman came back to Ayodhya, what was celebrated? Deepavali. Same Rama today, in today's age, in today's time, what happened 500 years back, Mughal Emperor Babur came, attacked India, and he broke our temple of Ayodhya, Ram Mandir. And after a long battle, we are giving lot of sacrifices, and long battle is done, and now we have got the Ram temple, Ram Ayodhya, Ram Janmabhoomi temple back to us. This is given to again to Rama. So now again we are going to build, we have already built the temple, and now on 22nd January, on the auspicious day of Posh Shukla Dvadashi, Vikram Samvat 2080, that is January 22, Monday 2024. The new idol of the child form of Bhagwan Shri Ram will be installed in ground floor of new grand temple being built at Shri Ram's birthplace after about 500 years of liberation fight. Okay, this temple is going to be built in a traditional way. This is very beautiful temple. After it is inaugurated for darshan, we all should go and have darshan of Rama. Mataji, you're in mute, Mataji. You're in mute, Mataji. With this, it is a time of our performances which you have prepared. Okay, so start your performances with this small story of Ramayana and small gist of Ram Mandir in Ayodhya. So, Shri Ram Mandir ki jai, अयोध्या नगरी की जय और हमारे श्री राम जी की जय. With this, we will start our program. Yes. Hare Krishna. Yes, you are ready, children? We will start the program with Durga Maya Sita. Hare Krishna. Today I am acting as Sita. I am Sita. I am the princess of Mithila. Hence I am also called as Maithili. I am the daughter of Sunayana and Janaka. So I am called as Janaki as well. I am the daughter of Bhudevi. I married Sri Rama and came to Ayodhya when Sri Rama was asked to go to Vanvas. I went along with him. It was my duty to be with him in his sukh and dukh.
When Ravan kidnapped me, I waited for Sri Ram to come and rescue me. Sri Ram is an ideal husband and good ideal king. I am very happy that on 22nd January, a huge mandir is being built for Sri Rama in Ayodhya. This was possible after the struggle of 500 years and sacrifice of thousands of people. I request all of you to celebrate this day like a festival. Light diyas, prepare sweets, and chant Rama bhajans. Hare Krishna. Yes, very beautifully done, Durga. A nice message, Durga. Maya Sita has given to light diyas in your houses and do pujas and worship Rama on the 22nd of January. So that in every house celebration should be there. Okay? So, what was the message from Sita Maya? To lit the diyas and do pujas in your homes. In every home, there should be lightning, there should be puja. So next, I will take Ayansh. Yes, Ayansh, what you have prepared for this celebration? हरे कृष्णा। मैं दशरथ नंदन भरत ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब मेरे स्वामी वन की कुटिया में रहेंगे तब मैं भी राजमहल में नहीं रुकूंगा। अयोध्या से बाहर सरयू नदी के किनारे एक कुटिया में तपस्वी बनकर आप सब शासित है। मैंने श्री राम का अयोध्या का राज नहीं लिया है, मैंने तो बस अपने बड़े भैया का आज्ञा का पालन किया है। श्री राम भगवान 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः ओ गुरुदेव, मैं भी ना एक दिन कुटिया में रहूंगा। मेरे स्वामी बहुत खुश होगा। हरे कृष्णा। ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस अयांश, बहुत सुंदर आपने बोला। तो अभी बताइए राम जी का जन्म स्थान कौन सा है? व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ रामा? यस, अयोध्या। वेरी नाइस। तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर कहाँ बन रहा है? अयोध्या। राम मंदिर अयोध्या। ओके, वहां पर जो टेम्पल है उसमें जो डीटीज हैं, जो भगवान की मूर्ति लगाई जाएगी, श्री विग्रह होगा, वो 5 साल के बालक का होगा। कैसा विग्रह होगा? 5 साल के बालक का विग्रह। राम मंदिर में अयोध्या जी में जो राम जी वहां पर स्थापित किए जाएंगे वो कैसे होंगे? 5 year old. Ayansh, how old are you? 6 years. Okay, like Ayansh only. Ramji's size will be Ayansh size. And Devansh, how old are you? 6. Devansh. 6. हाँ, सेम आयांश एंड देवांश। आप जैसे राम जी होंगे जो वहां अयोध्या में विराजमान है। 5 years old. Ashri. सुभाश्री, अनम्यूट कीजिए। 6, 7 years, माताजी।
हाँ, आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए, आप क्या करने वाले हैं? Hare Krishna. Now I'm going to act as Jatayu. In the Hindu epic Ramayana, there is a reference to a divine bird called Jatayu. There is different stories and myths related to the birth and life of Jatayu. However, he comes into prominence in the epic when he tries to save goddess Sita, wife of Lord Rama, from Ravana, the demon king of Lanka. Ravana cut the Jatayu's one wing, but Jatayu helps Sita Devi. Jatayu is a bird still also lived in our mind. Hare Krishna. Thanks for giving the opportunity. Jatayu Rock, situated in Kerala, Kollam district. Hare Krishna. वेरी नाइस सुभाश्री, वेरी नाइस, वेल डन, वेल डन। आपको मालूम है जैसा कि सुभाश्री ने बताया, जटायु ने सीता माता की हेल्प की थी। जब रावण उनको लेकर जा रहे थे तो उसने पूरा प्रयास किया सीता माता को बचाने का, बट ही वॉज अ बर्ड ओनली, सो ही कुड नॉट, बट इन दिस ही वॉज वुंडेड बैडली। और फिर उनका जब अंतिम समय हुआ तो राम जी को उन्होंने बताया कि कैसे सीता को रावण ले गया है, तो राम जी ने उनका अंतिम संस्कार खुद किया। लास्ट राइट्स राम जी डिड फॉर दैट जटायु, अपने पिता की तरह उनका अंतिम संस्कार किया। और जो राम मंदिर है, आपको मालूम है चिल्ड्रन, वो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उस ऑन एवरी ब्रिक व्हाट विल बी रिटन? राम राम राम। और जब राम जी का जन्मदिन होगा तो राम जी के फेस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। सन रेज विल कम ऑन राम्स फेस। ओके यशस्विनी, यू आर प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज कर कंज कंजारुणम कंदर्प अगणित मित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदिति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मम रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल तल गंजनम मनुजाहि राचौ सोबारहु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलो स्नेह जान तिरावीरो एहि बाती गौरी असीस सुनिसिय तहि हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हरे कृष्णा। Nice, nice, very nice स्तुति done by यशस्विनी, very nice। So सियावर रामचंद्र की जय, दशरथ नंदन की जय, कौशल्या नंदन की जय, अयोध्या धाम की जय। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। यस,
वेदिका, आप क्या करना चाहेंगे? माता जी, मैं हमको उसकी इसके बारे में पता नहीं था, तो हमको टाइम भी नहीं मिला प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको जो भी जानकारी है, आपको तो खूब मालूम है ना राम मंदिर के बारे में, तो बताइए आपको क्या क्या मालूम है। अभी आपने सुना भी, और पहले से भी मालूम है, थोड़ा सा बताइए। यस, कोशिश कीजिए। जब राम जी लंका के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि लंका के पानी को कैसे पार करे, और उनको लगा कि कुछ ना हो पाएगा, वो माता सीता से कभी ना मिल पाएंगे, पर फिर उनको गुस्सा आया कि वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें हार नहीं मानी, पर फिर भी उनको गुस्सा आया, उन्हें तीर मारी समुद्र पे। फिर समुद्र महाराज आकर उनको बोली कि एक रास्ता है, अगर वो पत्थरों को डालेंगे उनमें जय श्री राम लिख के, तभी वो ऊपर आएगा और रास्ता बनेगा। तो इसलिए उसकी वजह से वो वहां पे लंका पहुंच गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखा हमने देविका से क्या सुना? हमने सुंदर कांड में आता है ये, जब राम जी समुताप में गुस्सा में आ जाते हैं और समुद्र देव को धमकी दे देते हैं कि मैं तुमको सुखा दूंगा अगर तुमने मुझे रास्ता नहीं दिया। तो वही वाली स्टोरी इन्होंने हमें बताई सुंदर कांड से। सुंदर कांड को कहते हैं रामायण का हृदय है, हार्ट ऑफ दिस रामायण, रामचरितमानस का हार्ट है। बहुत सुंदर। देवांश, आप क्या बताएंगे? माता जी, मेरे पास एक भी वर्ड नहीं है, तो मैं तो कुछ आप आता है ट्राई तो कीजिए, यू कैन डू इट, डू इट। हम देखते हैं ना। चलो We are going to celebrate on 22nd January Ram Temple inauguration functions, celebrations, lot of enjoyment, lot of joy, performances, dance you are going to do na. So तो जब जब वो okay, no problem. So now anybody else? Who is else? माता जी, Yes. देवांश नहीं बोल पाया, तो उसके लिए मैं एक और बोल दूं। Ah, okay. What you want to say? Tell. जब सीता माता के पैदा होने से पहले उनके माता पिता के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा महादेव की तपस्या करते थे। एक दिन महादेव एक फार्मर के रूप में आकर उनको बोले कि जहाँ पे वो तुम मतलब बैल रुकती है, वहीं पे खोदना और तुमको एक सुंदर सा संतान मिलेगा। तो ऐसे उन्होंने करा, उनको मिला। बाद में उन्हें जब तपस्या करके महादेव ने उनको दर्शन दिए, उन्हें उनसे प्रार्थना करी और बोली कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं आपकी तपस्या हमेशा करूंगा। और ऐसे ही महादेव ने उनको मदद करी थी। बहुत सुंदर। राजा जनक की स्टोरी सुनाई। राजा जनक एक मुनि थे, वो थे तो राजा, मगर उनका स्वभाव मुनि के जैसा था। वो बहुत ही तपस्या करते थे, सब करते। और संतान के रूप में जब वो फील्ड में व्हेन ही वाज प्लोइंग द फील्ड्स, जब वो हल चला रहे थे, तो उनको एक घड़ा मिला, उस मटके के अंदर सीता जी मिली। तो ऐसे करके सीता जी का जन्म हुआ। तो इस तरीके से हमने एक और स्टोरी सुनी वेदिका से, बहुत सुंदर। तो रामायण की स्टोरी से जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, आपको कोई क्या टीचिंग मिली, उसका मॉरल क्या मिला? हु विल टेल? व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? We should be not jealous. Okay, we should not be jealous. Nice. And Stay simply. yes, Stay simply. stay simply. Okay, stay simply. Nice. Anything else?
Mataji, I would like to share some information about Ram Mandir in Ayodhya. Okay, tell me. Mataji, One Ram- second, Yashaswini. Ganga Mataji, we have time. Hare Yes, Krishna. yes, Mataji. We have lot of We time, can- Mataji. We have time. Mataji, Okay, the fine. height- Yes, the height of Yashaswini, the go on. man- the height of the mandir is 161 feet, and the area that the mandir covers is 28,000 feet. The mandir is the most largest mandir in the world. I mean, in India, it would be the most largest mandir, and the architectural plans were going from a long time back. Mataji, I have this much information about the mandir. Very nice information. Everyone should have this And information. Mataji, there And will it be is so nicely 14 published golden gates. everywhere. Yes, tell There me. will be 14 golden gates in whole mandir. Yes, very nice, very nice. So, what is the height? Can anyone tell me? Just now Yashaswini told, what is the height of temple? Just now Yashaswini told the height of Ram temple. How much high it will be? It will be 3-story building. Okay. On ground floor, Ram Lala, Shri Vigraha will be placed. And yes, tell me, Durga. 161 feet. Yes, it is 161 feet high. How much is the length? I will tell you. Length is 380 feet. Long, 380 feet long it will be. And the width, you know na width? You must be doing the sums of length, width and height. So width is 250 feet. You can write all these things in your books. These are things to remember. And this is 3-storied temple. Height of every story will be 20 feet. Total number of pillars will be 392. And how many doors are there? 44 doors are there. 44 doors. And this is going to be the one of the largest temples in the world. It is not the largest, but one of the largest. जो बहुत बड़े-बड़े temples हैं, उनमें से ये एक बहुत बड़ा मंदिर होने वाला है. ओके? और ये मंदिर कहाँ बनने जा रहा है? The temple of Bhagwan Shri Ram is being built at the place of his birth. Birthplace, भगवान का जन्म स्थान. भगवान जैसे कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे? मथुरा जी में. ऐसे राम भगवान कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या जी में. जहाँ भगवान का जन्म होता है, उस स्थान को धाम माना जाता है. For us that is pilgrimage. तीर्थ स्थान हो जाता है वो. तो भगवान के जन्म स्थान पर क्या बनने जा रहा है? एक भव्य मंदिर. जहां पर भगवान ने जन्म लिया था, वहीं पर वो मंदिर होगा. मंदिर बहुत भव्य होने वाला है. उसका हाइट हमें यशस्विनी ने बताया 161 फीट और उसका लेंथ होगा 380 फीट. 380 फीट लेंथ बताइए. आयांश कितना लेंथ होगा मंदिर का? 380 feet. Okay. Okay, Mataji. Okay.
and this is going to be the largest celebration. Whole India is celebrating it. The whole of India. क्यों ऐसा होता है? हम क्यों ऐसा करते हैं? Can you tell me? When somebody is so great, ऐसा किसी के लिए मंदिर बने, वो व्यक्ति तो नहीं है, वो भगवान है, वो कितने महान होंगे, लेकिन उन्होंने एक मानव के रूप में अवतार लिया रावण को मारने के लिए, और उस अवतार में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, और हमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो राम जी ने हमें एक शिक्षा दी कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। जब उन्होंने रावण से युद्ध किया तो जीत किसको प्राप्त हुई? Who won the battle? राम जी, क्योंकि राम जी धर्म की साइड पर थे, गुड की साइड पर थे। जो इविल की साइड पर होते हैं और जो अधर्म की साइड पर होते हैं, उनकी हमेशा हार हो जाती है। सो राम जी taught us the lesson of good over evil. एंड राम जी, जैसा कि मैंने बताया कि अपने पिता के कहने पर वनवास चले गए, तो प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा उन्होंने, एक रघुकुल रीत है, बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं आपके वचन को निभाने के लिए जंगल चला जाऊंगा, एंड हैप्पीली ही वेंट टू द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ सीता एंड लक्ष्मण जी। सो हमें राम जी के चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं लेनी है। राम जी वॉज ऑलवेज वेरी काम, शांताकारम, उनका क्या स्वरूप है? शांताकारम। वो कितना बड़ा भी ट्रबल आ जाए, कितना बड़ा भी मुसीबत आ जाए, ही इज ऑलवेज शांताकारम। दूसरा, ओबीडियंस, ही इज सच ओबीडियंट चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स। उन्होंने अपने माता पिता की हमेशा आज्ञा का पालन किया। करेक्ट? So, with this I will ask Bala Mata ji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. माता जी, आप श्लोका सेक्शन में आज का कुछ आपका? आज का तो कुछ श्लोका सेक्शन में कुछ नहीं। ठीक है माता जी, तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। गंगा माता जी, I can continue with this only? Yes, Mataji, you can continue, Mataji. Okay. तो हम सब राम मंदिर जिस दिन होगा इनॉग्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन सब लोग अपने अपने घरों में क्या क्या करेंगे, वन बाय वन आप मुझे बताएंगे। ओके, वी विल स्टार्ट विद अयांश। यस अयांश। माता जी दिए जलाएंगे, घर सजाएंगे एंड पूजा करेंगे, राम भगवान को झुलाएंगे और भोग लगाएंगे। क्या भोग नहीं लगाएंगे? केवल झूला झुलाना, दीप जलाना और उसी से भगवान भूखे बैठे रहे? भोग लगाएंगे। ठीक है, तो अयांश का बहुत बड़ा प्लान है कि अयांश क्या क्या करने वाले हैं। दिया जलाने वाले हैं और घर सजाने वाले हैं और भगवान को झूला झुलाने वाले हैं और भोग लगाने वाले और भोग भी लगाने वाले हैं। तो he has a large plan, 4 things he is going to do on Ram Janmabhoomi
टेम्पल इनॉग्रेशन डे। ओके, जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन अयाश ये करेंगे। With this we will move to Vedika wants to tell. हम उस दिन अपना घर सजाएंगे, मिठाई बनाएंगे, उससे एक दिन पहले मंदिर को साफ करके तैयार करेंगे, फिर उस दिन भोग चढ़ाएंगे और हम पूजा करेंगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। और आप तो क्लब हाउस में डांस भी करेंगे ना? हाँ, तो बड़ा प्लान है ना कि हम सब मिलजुल कर भी करें। ये तो आप घर में करेंगे, है ना? और फिर हम सब लोग मिलजुल कर भी एक उत्सव मनाएंगे। हम वी हैव अ प्लान ऑफ अ उत्सव, लार्ज सेलिब्रेशन वी विल डू। वहां पर नाचेंगे, गाएंगे, भजन गाएंगे, भोग लगाएंगे, है ना? और बहुत सारा कुछ करने वाले हैं हम। और हमारा देवांश क्या करने वाला है? हम लोग भगवान को तैयार करेंगे और हम लोग भगवान को भोग चढ़ाएंगे और दूसरे को मिठाई कराएंगे और सुबह भजन लगाएंगे और क्लब हाउस पर नाचेंगे और ठीक, very nice. Okay, now tell me, Durga, what is your plan? Mataji, I'm going to decorate my house with diyas. My mother is going to make sweets for Shri Ram, and we are going to sing Ram Bhajanas on this day, and I'm going to dance in the clubhouse. Very nice. Subhashri? I'll go for temple and I'll message for my friends Mataji. Okay, you will go to temple and what you will do? Do puja Mataji. Do puja. Okay, fine. Yashaswini, where are you? What you are Mataji, we will decorate our house, make rangoli, light diyas. हम लोग भोग लगाएंगे. We will sing and dance and celebrate as Diwali. Yes, Diwali. Yes. This is second Diwali for us. Very nice. But I was searching for one answer which nobody has given, कि राम जी के गुणों को भी अपनाएंगे। हमें राम जी, जब भी आप कोई फेस्टिवल लेंगे, जब भी आप कोई सेलिब्रेशन करेंगे, one thing you should always keep in mind, कि मेरी सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि, सच्चा नमस्कार क्या होगा? How is it that मैं उनको सच्ची तरह से फॉलो करता हूँ? ट्रूली आप कैसे उनको पकड़ सकते हो? By following his footsteps. गीता में एक आता है ना श्लोका, यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवेतरो जना। जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं। भगवान राम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हमें उनके गुणों को, उनकी क्वालिटीज को क्या करना है? अपने अंदर लेना है। If he was a obedient son to his father, आप सबको भी अपने पेरेंट्स के ओबीडियंट बच्चे बनना है। You can take a vow on that day or take an oath that from today I will be the most obedient child of my parents. आप कैसे obedient child बनेंगे? Yes. हमारे पेरेंट्स को आर्ग्यू ना करें, उनकी बात सुने, उनको रिस्पेक्ट करें। यस, उनको टॉक बैक नहीं करना है।
Children these days are talking back to their parents. That is very bad. We should obey them. They know better than us. We don't know our good. They know what is good for us, what is not good for us. Okay? We should listen to our parents. Only parents? Teachers Elders. also. All elderly people, grandparents, parents, your teachers, your spiritual class teachers, you should listen to everyone. Okay? ओबीडियंट होना है. हाँ, लेकिन यदि कभी आपके मन में डाउट आता है तो पोलाइटली कैसे पूछना है? Politely you can ask that I have little doubt what you are saying. Please clear it. They will clear it. ओके ओके, तो एक गुण मैंने बताया आपको. नाउ योर टर्न. एक गुण राम जी का आप बताएंगे कि उनमें क्या था ऐसा कि जिसको आप अपने अंदर लेना चाहेंगे. यस दुर्गा, टेल मी. Be calm always. काम. यस, देखिए उनको राज्य अभिषेक होने जा रहा था, उनको किंगडम मिल रहा था. एंड his mother, second mother, Kekai didn't want that he should be the king. So happily he went to the exile. He didn't one time also. Can you think of doing this? One time also he didn't say that why should I go to exile? I will take the kingdom. Tell Bharat to go to the, you will do na? If mom will say eat today nice something paranta and you want Maggie, you will say why I should eat paranta? I want Maggie only. No, 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 I want Maggie. We should do this. No, we should listen to our parents. If they are asking you to eat paranta, then we should eat paranta because it is nutritious, it is good for our health. Right? If parents are saying no, it means they have some nice meaning. They don't want to harm you in any ways. Correct? Okay. He was always calm and quiet. उन पर बहुत सारी मुसीबत आई, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना शांताकारम स्वरूप नहीं छोड़ा. माता जी, वो कभी हार नहीं मानते थे और हमेशा कोशिश करते थे. सत्य धर्म का पालन करते थे. यस, वो हमेशा कोशिश करते थे, वो हार नहीं मानते थे. और यशस्विनी ने बोला कि वो धर्म पर चलते थे. आपको मालूम है वो थे ही धर्म के अवतार, तो धर्म पर ही चलते थे हमेशा. धर्म क्या होता है? जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं वो धर्म होता है. ना कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है. Then you have to listen to your teachers. Then you have to read the books. Then only you will come to know that this is dharma and this is not dharma. तो उन्होंने हमेशा अच्छाई धर्म का साथ दिया, बुराई का साथ नहीं दिया. And those rakshasas, those Ravan was on the wrong side. वो हमेशा बुराई कर रहे थे. किसी की पत्नी को चुरा के ले जाना बुरी बात है ना, तो रावण ने ऐसा किया तो उनको हारना पड़ा. क्योंकि जब भी आप गलत रास्ते पर चलेंगे, आप बुराई पर चलेंगे, तो आप हार जाएंगे. जब भी आपका रास्ता अच्छा होगा, सही होगा, तो आपको हमेशा विक्ट्री मिलेगी. तो राम जी ने हमें एक लेसन दिया, विक्ट्री ऑफ गुड. जीत हमेशा अच्छाई की होगी, बुराई की हमेशा हार हो जाएगी. जब उन्होंने ऐसा बताया तो हमें अच्छे बनने की शिक्षा दी कि हमें क्या बनना है?
इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान कौन होता है? Who will tell me अच्छा इंसान कौन होता है? The person who is caring, always speaking truth, or Very nice. don't यशस्विनी irritating other कह रही, person, बोलिए or बोलिए। don't disturbing other persons, ओके always being calm. ओके। The यशस्विनी के लिए अच्छा इंसान वो है जो केयरिंग होता है, जो शेयरिंग होता है, जो काम एंड क्वाइट होता है, जो दूसरों की चिंता करता है। बहुत अच्छा। और अच्छा इंसान कौन होता है दुर्गा, आप बताइए। राम जी। राम जी अच्छे थे। वेरी नाइस। तो राम जी जैसे आप बनना चाहेंगे? जी माता जी। जब हम बचपन से अपने माइंड को सेट कर लेते हैं ना, तो हम बन जाते हैं वैसे। आपको मालूम है, हमारा बचपन से एक विचार बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो विचार आपका बड़े होने पर बनेगा। ये एवरी डे यू आर मेकिंग योर सेल्फ। एवरी डे छोटी छोटी चीजों को आपके अंदर आप बिठाते हैं और फिर एक दिन आप वही इंसान बन जाते हैं जो भी आपने बचपन से सीखा। तो जैसे कि आज आपने राम जी की चर्चा करी, आपने राम जी के गुणों की बातें करी, तो कहीं ना कहीं दिस ऑल दीज थिंग्स विल बी इंस्टिल्ड इन योर माइंड और आप वो बन जाएंगे। हम वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। ओनली थिंग इज डिजायर करना। Only thing is, we should not desire for chocolate and toffees and chips. We should desire for good things of life. भगवान जो भी डिजायर करोगे ना उसको सैंक्शन करते हैं। गॉड इज ऑल मर्सीफुल। भगवान कितने मर्सीफुल है आप जानते हैं ना। उन्होंने जब ताड़का सुबाहु को मारा भी, मारिच सबको मारने में भी जब भगवान किसी का उद्धार ही करते हैं। राक्षस है ना वो लोग, तो राक्षसों को मारा भगवान ने, लेकिन मारने पर भी मर्सी थी उनकी। भगवान के अच्छे में तो अच्छा होता ही है। जब वो हमें लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है तब भी वो उद्धार ही करते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। वी ऑल ह्यूमन रेस, ऑल लिविंग क्रिएचर्स, हम सब क्या है? ईश्वर के संतान हैं। हमारे बायोलॉजिकल माता पिता हैं, जो भी हमारे माता पिता हैं, लेकिन एक हमारे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो हम सब के माता पिता हैं। तो वो जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। और जो उनका बच्चा बहुत मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, आयांश की तरह, सो स्मॉल बट सो मच पेशेंस ही इज हैविंग, लिसनिंग केयरफुली एंड डूइंग एवरीथिंग, टेकिंग पार्ट इन ऑल द थिंग्स with full energy. So God is going to bless him. भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है हमको। माता जी। Thank you. Thank you. You are doing so much. Ayash, God will be pleased with you. तो हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं, भगवान हमारा एक एक प्रयास देखते हैं कि ये बच्चे कितना, छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देखते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। हृदय में। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। गॉड लिव्स इन आवर हार्ट। तो जब हृदय में भगवान जी बैठे हैं तो हमारी हम हर मूवमेंट को देख रहे हैं ना। एम आई राइट? आपको
ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान जी के आगे जाऊं फिर उनको कुछ बताऊं। वो तो हर समय, एवरी मोमेंट इन आवर हार्ट ही इज लिसनिंग टू अस। जब हम कुछ बैड प्लान बना रहे हैं, कुछ बुरा बना रहे हैं, किसी को तंग करने का, परेशान करने का, वो भी वो देख रहे हैं। जब हम कुछ अच्छा प्लान बना रहे हैं, किसी को हेल्प करने का, किसी को हैप्पीनेस देने का, तब भी वो देख रहे हैं। तो ईश्वर हमेशा हमारे हार्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गीता जी में भी 15.50 में ये लिखा है, हृदय सन्निविष्टो। मेरे को अच्छे से याद नहीं है वो श्लोका। वहां पर यही लिखा है कि मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो विद दिस वी विल वाइंड अप द सेशन। आई थिंक इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू गो फॉर योर डांस प्रैक्टिस। एंड सो हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करेंगे। और आज हम, क्योंकि राम जी का दिवस मना रहे हैं, तो श्री राम का भी जय घोष बोलेंगे। ओके, chant with me loudly today. Unmute कीजिए. So happily we can chant. Yes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare. Krishna। सियावर रामचंद्र की जय। Yay.